Hello friends, I am Anit Pendari and today we will be having the fourth and last video on Morse circle method जो एक सीरीज बनाई थी अपन ने वीडियोस की, जिसमें पहला वीडियो था फॉर normal and tangential stresses on a biaxial stress system of like nature, दूसरा था normal and tangential stress on inclined plane in case of a biaxial system when stresses are of unlike nature. Third was for normal and tangential stress on an oblique plane for a biaxial stress system subjected to two mutually perpendicular stresses accompanied by shear stress. और आज उसी सीरीज में कंटिन्यूशन में एक फोर्थ वीडियो आएगा और ये फोर्थ वीडियो कौन सा होगा तो टू कैलकुलेट ग्राफिकली द प्रिंसिपल मेजर एंड माइनर स्ट्रेसेस लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स for a biaxial stress system subjected to two mutually perpendicular stresses accompanied by shear stress. फिर एक बार ये टॉपिक Morse circle method या graphical method of analysis of biaxial stress system, ये this comes under principal stresses and strain, a topic of strength of material or mechanics of material, a subject for second year civil, second year mechanical and all branches of technology, BTech technology, basically food, petro, oil and petro, paper as well as paper and pulp. तो उस वीडियो की सीक्वेंस सीरीज का ये चौथा वीडियो होगा. यू आर राइट नाउ विथ मी ऑन माय यूट्यूब चैनल अनीत पेंडारी. लेट अस हैव दैट लास्ट पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिसमें एक रेक्टेंगुलर मेंबर of unit thickness ABCD is subjected to two direct stresses P1 and P2 which are mutually perpendicular to each other. दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, accompanied by shear stress Q. और ये ग्राफिकल मेथड से एनालाइज करेंगे to determine the major and minor principal stresses. प्रिंसिपल प्लेन्स मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ. प्रिंसिपल प्लेन्स वो प्लेन्स होते हैं जिसपे shear stress जीरो होती है, which are subjected to zero shear stress or no shear stresses. The stresses acting on principal planes are known as principal stresses. अब उसी का लोकेशन, उसी का मैग्नीट्यूड निकालना है. अगर ये एनालिटिकली सॉल्व करना होता तो अपने पास रिजल्ट्स थे P मेजर या माइनर निकालने का. प्रिंसिपल मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस वाज P1 प्लस P2 बाई 2 प्लस मेजर के लिए माइनस माइनर के लिए रूट साइन में P1 माइनस P2 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. ये एनालिटिकल मेथड है. अगर आपको P1 पता है, P2 पता है, Q पता है तो ये फॉर्मूला लगा लो. प्लस साइन से P मेजर निकलेगा, माइनस से P माइनर. ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. इसकी लोकेशन चाहिए तो tan 2 अल्फा वाज नथिंग बट ट्वाइस Q अपॉन P1 माइनस P2. यहाँ से दो एंगल्स बनेंगे, एक माइनर एक्सिस का और एक मेजर एक्सिस का. जबकि यदि आपको ये पर्टिकुलर मेथड से इफ यू आर सपोज टू कैलकुलेट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस PT मैक्स निकालना है तो PT max was nothing but under root of P1 minus P2 by 2 whole square plus Q square. ये किसकी वैल्यू थी तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की. इसका भी लोकेशन चाहिए तो tan 2 बीटा. इसका इंक्लिनेशन चाहिए, वो प्लेन चाहिए जहां PT max मिलेगा तो tan 2 बीटा was P2 minus P1 अपॉन ट्वाइस Q. ये एनालिटिकल मेथड थी. ये एनालिटिकल मेथड से आप वैल्यूज पुट अप करके वैल्यूज निकाल सकते हैं. वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग ग्राफिकल मेथड जिसको बोलते हैं मोर्स सर्कल मेथड फॉर a rectangular member subjected to two direct stresses P1 and P2 accompanied by shear stress to calculate the location and magnitude of major and minor principal stresses, location and magnitude of maximum shear stress.
इस कैटेगरी के पहले 3 वीडियोस you had already gone through, you had seen those videos. This is the last and fourth video on this topic. Let us take an example in which we will have values that a rectangular member of unit thickness ABCD is subjected to two direct mutually perpendicular stresses of magnitude 30 Newton per mm square and 10 Newton per mm square accompanied by shear stress of magnitude 10 Newton per mm square. अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एनालाइज करते सो एज टू कैलकुलेट मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बाय ग्राफिकल मेथड, मोर्स सर्कल मेथड. The first step will be to take certain scale. Now, so as to take a scale, you can take 10 Newton per mm square equal to 1 centimeter. Then P1 will be of 3 centimeter maximum. और ये 1 सेंटीमीटर जाएगा जो स्केल बहुत छोटा हो जाएगा. यदि 5 का स्केल लेते हैं तो then this will become 2 for us, 2 for us, and this will become 6 for us. If we take a scale of 2.5 Newton per mm square as 1 centimeter, then this 2.5 से P1 will become 12, है ना. 2.5 से 30 को डिवाइड करो तो you will get 12, जबकि this will become 4 centimeter for us. You can take any of the scale whichever you feel convenient. We'll take 2.5 Newton per mm square equal to 1 centimeter. You can even take 5 Newton per mm square as 1 centimeter. You can even go for scale like 2 Newton per mm square as 1 centimeter. एक बार जब अपन स्केल ले लेते हैं फिर उसके बाद अपन बोलते हैं कि मार्क एनी पॉइंट O एंड लोकेट पॉइंट्स कैपिटल A एंड B. A और B को लोकेट करना है such that OA is equal to P1. P1 is 30 Newton per mm square. 30 Newton per mm square ये वैल्यू अपने हिसाब से कितनी बन रही, तो ये हो रही 12 सेंटीमीटर. लोकेट पॉइंट्स, mark any point O and locate point A and B such that OA is equal to P1 equal to 30 Newton per mm square equal to 12 centimeter and OB equal to P2 equal to 10 Newton per mm square equal to 4 centimeter. अब दो पॉइंट्स में मार्क करता हूँ, दोनों का नेचर टेंसाइल है, दोनों O के एक ही साइड होंगे. A पॉइंट मार्क कर दिया मैंने, A कितने पे मार्क किया तो 12 सेंटीमीटर पे, B कितने पे मार्क करूंगा तो आई विल मार्क इट एट 4 सेंटीमीटर. OB is 4 centimeter, OA is 12 centimeter. The next part will be to locate points A dash and B dash. Mark points A dash and B dash such that A dash के कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे तो A dash का कोऑर्डिनेट होगा P1 minus Q और B dash का कोऑर्डिनेट बनेगा P2 plus Q. अब देखो P1 कितना है तो 12 और Q कितना है तो 10. 10 का कन्वर्शन करोगे तो 4, इसलिए -4. इसका कितना आएगा तो 4 plus 4. याद इतना रखना P1 के साथ -Q होगा और P2 के साथ +Q. I will be marking those 2 points. A x कोऑर्डिनेट है 12, y कोऑर्डिनेट है 4, तो मेरा पॉइंट लगभग कहीं यहाँ आएगा A डैश. इतना ही डिस्टेंस 4 मार्क करते समय जाएगा तो आई विल हैव B डैश. अप टिल नाउ व्हाट आई हैड डन, आई विल रिपीट. एक शॉर्ट इसमें बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम है P1, P2 और Q का, so as to calculate location of major and minor principal stresses. First step we did was we took a scale of 2.5 Newton per mm square as 1 centimeter. Mark any point O and locate points A and B such that OA is equal to P1 equal to 30 Newton per mm square equal to 12 centimeter. OB equal to P2 equal to 10 Newton per mm square equal to 4 centimeter. Mark points A dash and B dash with coordinates P1 minus Q, P2 plus Q, 12 minus 4, 12 plus 4. Next step is join A dash B dash. इस A dash B dash को join करो, it will intersect the horizontal at point C. जहाँ कहीं ये intersect करेगा horizontal at point C, that will be the center of Morse circle. Let us complete the circle with
ए डैश सी एज रेडियस एंड सी एज द सेंटर, और ये जो बना ये सर्कल, ये हो गया मोर्स सर्कल फॉर एस, MOHR मोर्स सर्कल, मोर्स सर्कल बन गया। अब अपने को चाहिए P मेजर एंड P माइनर। ना रिमेंबर वन थिंग, major and minor principal stresses are those stresses on which shear stress is zero. shear stress को अपन डिनोट कर रहे हैं Q से, यानी जहां Q जीरो होता वो है लोकेशंस ऑफ योर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स, और वहां जो मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेसेस है वो है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अगर यहाँ देखते हो तो Q आ रहा y कोऑर्डिनेट पर, यानी जहां y कोऑर्डिनेट जीरो हो रहा दैट मींस अलोंग x एक्सिस। अगर अलोंग x एक्सिस चाहिए तो इस OA लाइन को एक्सटेंड करो, ये कहीं तो भी पॉइंट्स M और N पे मोर्स सर्कल कट कर रहा विथ दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस। M and N are points of intersection of line OA with मोर्स सर्कल। ये जो डिस्टेंस OM है, ये OM, this distance is your major principal stress. Distance OM is your minor principal stress. See, I am just having it. P major क्या होगा, तो ग्राफिकली P major हो जाएगा OM, जो कुछ सेंटीमीटर आता है will convert it by scale। अपनी स्केल क्या है, तो स्केल है 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर मान के चलो इट कम्स आउट टू बी 15 सेंटीमीटर, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 विल बी योर P मेजर। P माइनर क्या होगा, तो P माइनर विल बी ON डिस्टेंस once again in centimeter and it will be converted to Newton per mm square। O से लेकर N तक का डिस्टेंस मान के चलो 2 सेंटीमीटर आ रहा, 2 into 2.5 यानी P माइनर हो जाएगा 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इकाई की वैल्यूज हो गई, तो दीज आर वैल्यूज ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। इफ यू वांट वैल्यू ऑफ tan अल्फा, अल्फा क्या था, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन। ये जो प्रिंसिपल प्लेन्स है इनका अगर अपने को लोकेशन चाहिए तो विल मेजर दिस एंगल। कौन सा एंगल मेजर करेंगे, तो विल मेजर दिस पर्टिकुलर एंगल ट्वाइस अल्फा। एंगल A डैश CM, एंगल A डैश CM will be equal to twice अल्फा। एक बार ये एंगल पता चल जाए, जो कुछ मेजर करके ये एंगल आएगा that will be twice अल्फा। from that you can get value of alpha divide by 2। सपोज सॉल्व करके ये 60 डिग्री आता है तो अल्फा होगा 30 डिग्री, 80 डिग्री आता है तो अल्फा होगा 40 डिग्री, और दूसरा एंगल प्लस इन दैट पर्टिकुलर पार्ट वी विल ऐड 90 डिग्री। देखो दो एक्सिस है, दो वैल्यूज है, एक P मेजर है एक P माइनर है, तो दोनों के एक्सिस होंगे। देखो ट्वाइस अल्फा, और फिर इधर अगर ये आया तो इसमें 180 ऐड करोगे तो विल गेट द सेकंड एंगल। सेकंड एंगल अल्फा के लिए नेचुरली प्लस 90 करके मिल जाएगा। दैट विल बी योर लोकेशन ऑफ मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल मेजर एज वेल एज माइनर स्ट्रेस। पोजीशंस भी हो गई। Now the last part which remains is maximum shear stress. Now you know one thing, when we plotted points A dash and B dash, its coordinates were P1 minus Q, P2 plus Q, and a Y coordinate indicates your shear stress. ये shear stress जीरो होती है along x axis, और इसलिए x axis के along OM और ON जो थे वो अपने P major और P minor मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बने। जबकि इस A डैश या B डैश की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो इफ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन CC डैश, then CC dash will be the maximum value of PT which you can have, और PT क्या इंडिकेट करता, तो shear stress, and therefore what we say is maximum shear stress is CC dash। PT max क्या होगा, maximum shear stress is CC dash which is radius of Morse circle। Morse circle का जो रेडियस है वो बना मैक्सिमम shear stress। अब इसका लोकेशन कैसा होगा, तो इसका लोकेशन आएगा ट्वाइस बीटा, और ये ट्वाइस बीटा होगा, ट्वाइस बीटा विल बी नथिंग बट एंगल ACC डैश। ये जो एंगल ACC डैश दिख रहा होगा, शायद मैं बरोबर कर लेता हूँ, ये ट्वाइस बीटा
is angle ACC dash will be the location for maximum shear stress. ये एंगल गिन लोगे, ये जो कुछ आता है ट्वाइस बीटा, अगर 120 डिग्री आता है तो बीटा विल बी 60 डिग्री। 60 डिग्री उस केस में पोजीशन ऑफ मैक्सिमम shear स्ट्रेस होगी। ये जस्ट एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूँ। गिनना क्या है ये मैंने बता दिया। गिनना आपको है, आपको स्केल, पेंसिल, इरेजर, कंपास लेकर P1 की वैल्यू जो थी अपन ने कंसीडर की थी, P1 was 30, P2 was 10, Q was 10, P1 P2 Q लेकर पहले मोर सर्कल ड्रॉ करना है। मोर सर्कल ड्रॉ करने के बाद OM को गिनना है जो तुम्हारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, OM को गिनना है जो तुम्हारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, एंगल A डैश C A या AC A डैश को गिनना है जो ट्वाइस अल्फा होगा। ट्वाइस अल्फा को अल्फा मिल जाएगा प्लस 90 करके माइनर का भी लोकेशन और मेजर का भी लोकेशन मिलेगा। PT मैक्स चाहिए तो CC डैश गिनना होगा विच विल बी द रेडियस ऑफ मोर सर्कल। ये डिस्टेंस जो कुछ आता है वो सेंटीमीटर में आएगा, उसको स्केल से आप न्यूटन पर एम स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। विद दिस ये प्रॉब्लम होने के बाद वो जो सीरीज है 4 वीडियोस का ग्राफिकल मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम, फिर चाहे शेयर अकम्पनीड हो चाहे ना हो, ये 4 वीडियोस की सीरीज यहाँ खत्म होती है। होप यू इजीली विद दिस, आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस, आफ्टर गोइंग थ्रू दिस 4 वीडियोस, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि ग्राफिकल मेथड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन कैलकुलेट करने के लिए सिंपलेस्ट मेथड, सिंपलेस्ट तरीके से आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू ऑल। चारों वीडियोस पढ़ लो, चारों वीडियोस से सारी केसेस क्लियर हो जाती जो ग्राफिकल मेथड है फॉर एनालिसिस ऑफ बायएक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। प्रॉब्लम्स बनाते समय, प्रॉब्लम्स ड्रॉ करते समय वैल्यूज के साथ कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वंस अगेन यू कैन कॉल मी ऑन 9372851339, 9372643264। ये 2 नंबर्स पे कॉल आउट कर सकते हो फॉर एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट। यू कैन इवन व्हाट्सएप मी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, क्योंकि मोर सर्कल के ग्राफिकल एनालिसिस मेथड के 4 वीडियोस के बाद नेक्स्ट अपकमिंग पार्ट विल बी वीडियोस ऑन पार्ट विथ टॉर्शन, design of solid shaft, design of hollow shaft. Keep in touch with these videos. Thank you.